Good morning, my dear respected students. And today we are just begin with a structured query language where we can talk about a DBMS, that is a database management system, RDBMS, that is to be called as a relational database management system. And to get the data from that, to insert the data within that, we are using a language which is to be called as a structured query language, that is also to be called as a SQL. अच्छा, एक बार जरा कल वाली बात पहले एक बार डिस्कस कर लें और मेरी ये रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन टू नुपुर. Nupur, can you just tell me something about primary key without any hesitation? Sir, it is a uniquely identified key in an attribute. Very good, great. This is used to uniquely identify the record within a table. Okay, there is two different properties of primary key. Nupur, कोई primary key की property है? अच्छा चलो नुपुर रहने दीजिए आप. मैं खुशी से एक बार पूछता हूँ. खुशी, कोई प्रॉपर्टी प्राइमरी की जो याद हो, जो कल हमने करके भी दिखाया था आपको शायद. Sir, it is unique in nature and it cannot be redeclared. It cannot accept a duplicate value. Duplicate value नहीं लेगी. And on the same time, if you are supposed to insert a null, they are not accepting the null as well. Null value भी accept नहीं करेगी. ठीक है. अब मेरे बच्चे से नेक्स्ट मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ. जशनप्रीत, जशन, kindly unmute yourself please. And my question is that what do you understand by candidate key, primary key and alternate key? एक ही लाइन में सब इंक्लूड हो जाएंगे. What do you understand by a primary key, candidate key and alternate key? If my voice is audible to you. Okay, no problem. मेरे को लगता है कि वो शायद आंसर आता नहीं होगा या कुछ ऐसी दिक्कत. अरे नहीं है, बिल्कुल है. हाँ बोल जशन, बोल. सर प्राइमरी की जो एक आइडेंटिफाई करती है कोई भी रिकॉर्ड. ठीक है बेटा. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंडिडेट की बच्चे? सर कैंडिडेट की वो की होती है सब जिसमें सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होती है. नहीं जशन, सिंपल एग्जांपल. all the fields within a table is to be considered as the candidates. The one which is used to uniquely identify the data within the table is to be considered as a primary key, and the rest keys which are not able to become a primary key is to be considered as a alternate key. ये था मेरा बच्चा, ये था मेरा उत्तर. मेरे बच्चे को मेरी बात समझ आ गई? यस सर. एक बार रिपीट कर सकता है मेरे लिए? रिपीट कर सकता है मेरा बच्चा एक बार? यस सर. सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तू यहाँ से चलना जो कि जशन, यहाँ से चल. तो क्या सारे के सारे फील्ड्स जो हैं टेबल के अंदर या कॉलम हैं वो कैंडिडेट की हैं. ठीक है, उसमें से एक जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो प्राइमरी की बन गया और जो बाकी रह गए वो अल्टरनेट की बन गया. अब बोल तू दोबारा. सर जो सारी फील्ड हैं जी वो है कैंडिडेट्स. सॉरी सर कैंडिडेट्स. एंड सर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा करते हैं सर वो है प्राइमरी. और सर जो सभी रह गए वो है अल्टरनेट की. thumbs up. Very good, great. Thank you very much for your kind cooperation. Thank you very much. Okay, so my dear respected students, thank you very much for coming, and really glad to see you all. And I'm just begin with the next concept. Yesterday we have discussed the concept of primary key as well as of origin key. मेरा बेटा आपने तो मुझे ये भी बोला था कि सर you have discussed this but we are not satisfied because you are supposed to give a practical demonstration for the same. अब जरा ध्यान से सुन लेना, हाथ जोड़ के आपके चरणों में विनम्र विनती है. For origin key we having two different tables. ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज मेरी बात को पहले. We having two different tables. मैं वही डेमोन्स्ट्रेट करूंगा प्रैक्टिकली. One is a teacher, second is a student. Now teacher is to be considered as a parent table and students is become a child table. अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करूंगा, and to create a link in between these two tables
in parent table, that is a teacher table, we create one column as a primary key, and in student table, which is a child key or child table, we are supposed to again create a same column which is there in a parent table as a primary key and link that with the help of a foreign key. सर ये बात आपकी अब भी नहीं समझ आई? कहता अच्छा, कहता सर ये तो देख लिया था कल, आपने बताया था कि ये लिंक क्रिएट हो गया, ये समझ आ गई थी, पर आपकी बात अभी भी नहीं समझ आई। कहता अब आ जाती है यार, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ओके, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अब मैंने क्या किया, CREATE क्रिएट टेबल टीचर 001, मैंने टेबल क्रिएट किया। प्लीज बेटा मेरी बात ध्यान से देखते जाना, दिस इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने एक ले लिया TID, इंटीजर लिया, इंटीजर, और मैंने इसको कंसीडर कर लिया दैट इट इज टू बी कंसीडर एज ए प्राइमरी की। इसका मतलब है इसमें ना तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हो सकती है एंड वी आर नॉट गोइंग टू एंटर नल वैल्यू एज वेल विद इन दैट पर्टिकुलर। ओके ठीक है सर। सर सेकेंड टीचर का नेम आ गया, मैंने ले लिया करेक्टर और मैंने मेंशन कर दिया कि 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं उसके नाम के अंदर, अगर ज्यादा होंगे तो वो एंटर नहीं करवाएगा। अब मैंने किया सब्जेक्ट, फिर दोबारा मैंने किया 20 हियर, हिट द एंटर की एंड दिस इज एंटर की, नो डाटाबेस सिलेक्टेड, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने इसको बोला यूज डाटा। अब ये याद रखना कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें डाटाबेस क्रिएट करना ही पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, अपने एफर्ट्स को बचा लिया और एफर्ट्स को बचाने के लिए मैंने बोल दिया कि ये टीचर 001 नाम का जो टेबल है, द टेबल विल बी क्रिएटेड। ओके डन। अब एक और टेबल क्रिएट हो रहा है, क्रिएट टेबल that is to be called as a student 001, STUDENT 001। अब मैंने क्या किया, प्लीज ध्यान से देखिएगा, what I am going to do here, I just create SID, student ID, which is integer here, enter. After that this is a S name, student name, and then there is a character 20 and hit the enter key. Now we are just taking this particular TID which is there in that parent table teacher 001. So what we can do here, we mention a similar kind of column here and mention TID, and data type is remain same, that is the integer, and after that we just mention FOREIGN। बच्चे कई बार टाइप करते हुए ना स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, वो ध्यान रखना, बच्चे नहीं मेरे से भी हो जाती कई बार। फॉरिजन की, कौन सी फॉरिजन की, किसको बनाना चाहते हैं आप फॉरिजन की, दैट इज TID को। और ये रेफरेंसेस, इसका रेफरेंस कहाँ से, इसको कहाँ पे इसका रेफरेंस है जहां से आप इसको लिंक्ड करवाना चाहते हैं, किस टेबल से करवाना चाहते हैं। मैंने लिखा टीचर 001, मैंने लिख दिया टीचर 001 और वहां पे उस टेबल में इसका नाम क्या है, मैंने लिखा TID। अब जरा ध्यान से सुन लेना मेरे बच्चों, प्लीज ध्यान से। मैंने यहाँ पे आया और एंटर हिट किया, अगर मैंने स्पेलिंग सारे ठीक लिखे हैं तो क्रिएट हो गया। Now what happened, now this is to be considered as a parent table and this particular is to be considered as a child table. We are supposed to create a link in between these two tables and we make TID in a parent table as a primary key, and here we declare TID similar data type, that is integer, and we just to instruct the system that foreign key is to be considered as a TID, and we have taken that reference, हम किसका reference दे रहे हैं, we are taking the reference of teacher 001 and the name of that particular column is TID and we are supposed to hit that enter key। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ तक जितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है वो मुझे yes में, no में या thumbs up में कर दीजिए, फिर मुझे पता लग जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थम्स अप। ओके ग्रेट। अभी तक मुझे 2, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, 4, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर बाकी को नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डाटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, मैं अब इंसर्ट इनटू टीचर के अंदर TEACHER 001 वैल्यूज। अब मैंने वैल्यूज में क्या डाला देखना प्लीज, मैंने लिखा 101, दिस इज अ TID, Arvind, that is the name of the teacher, and the subject we consider it as a
maths. We consider it as maths and hit the enter key. The data is supposed to be entered in a primary table or a parent table. अब दूसरी, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे 102 ले लिया और यहाँ पे लेने के बाद मैंने लिखा KAWALJIT कवलजीत, और मैंने यहाँ में मेरे बच्चों लिख लिया COMPSCI कंप्यूटर साइंस, मैंने एंटर हिट किया, ये भी हो गया। अब मैंने एक और किया, अब मैंने यहाँ पे किया बिकॉज आई एम अनेबल टू एंटर द सेम टीचर ID, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग हियर। सो वी कैन व्हाट वी कैन राइट हियर, वी राइट हियर जीवन ज्योति, जीवन ज्योति, और मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट क्या डाल दिया पुत्र, मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल ACC, मैंने लिख दिया अकाउंट्स एंड हिट द एंटर। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TEACHER 001 और मैंने एंटर हिट किया, वो तीनों की तीनों चीजें मेरे सिस्टम में आ गई, मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जरा देखिए, अब मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब मैंने क्या किया, SID, SNAME एंड TID, ओके। अब मैंने किया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 001 वैल्यूज स्टूडेंट ID, मैंने लिख लिया 201 कॉमा, उसके बाद स्टूडेंट का नाम है मेरे ख्याल से, मैंने लिखा साहिब, और अब मैंने लिखा टीचर की ID। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने उसको टीचर अलॉट कर दिया 101, और 101 का मतलब है दैट वी आर राइट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अरविंद, मिस्टर अरविंद जी, एंड नाउ व्हाट वी कैन डू सेमीकोलन एंड हिट द एंटर की, ये डाटा आ गया। अब मैंने क्या किया, सेकंड मैंने यहाँ लिखा ID will be 202, name of the student will be Jatin, और मैंने टीचर को दे दिया 105। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, this is the teacher ID, my dear respected students, this will be to consider as a teacher ID, but right now we have only teacher IDs, that is 101, 102 and 103. So if this table is linked with each other, so they are not going to enter the data of that particular. Why so? Because they have mentioned that we don't have any information about the teacher which belongs to a teacher ID, that is 105. अब मैंने क्या किया, मैंने एंटर हिट किया, ये देखिए प्लीज, यहाँ पे आया द स्टूडेंट कंस्ट्रेंट, यहाँ पे कंस्ट्रेंट मेंशन किया हुआ है, और कंस्ट्रेंट में क्या लिख रहा है, द फॉरिजन की रेफरेंस टेबल टीचर 001। इसका मतलब क्या है कि ये आपका वायलेट हो गया, कौन वायलेट हुआ, फॉरिजन की, और कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अपडेट, या उसको ऐड नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर 105 इन अ पेरेंट टेबल। अब मैंने क्या किया, प्लीज ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर अ टीचर दैट इज 105, और मैंने यहाँ पे आके लिखा, यहाँ पे मैंने टीचर ऐड किया विजय सू, और मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया मेरे बच्चों PHY, दिस इज टू बी फिजिक्स, मैंने एंटर हिट किया। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने लिखा, लिखना क्यों है, वहीं से उठा लेते हैं, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर 001। अब ये कहता है कि ये देखिए यहाँ पे विजय सूद आ गया, और उसका उनकी विजय सूद जी की टीचर ID क्या है, दैट इज 105। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास वो कहता है कि आपने सर कुछ एंटर करवाया था बच्चों का, कहता हाँ जी बिल्कुल करवाया था, कहता वो क्या था देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिखा टीचर ID फॉर एग्जांपल 2007 ले लेते हैं, ये लो, और मैंने यहाँ पे लिखा अमनदीप। अब मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया था लास्ट टाइम 105, बट वो एंटर नहीं कर पा रहा था उसको, बट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू हिट द एंटर की and they are supposed to display that data. Select star from, name of the table is student 001. अब ये डाटा एंटर हो गया, क्यों हुआ, because now they having a data related to that parent table is stored, named as Vijay Suji, and subject is physics, and now we are able to enter the data of a particular which belongs to a teacher ID 105। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहाँ तक समझ आई है, और मेरे बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, पता क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज टू बी कॉल्ड एज ए रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो, वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए, वेरी गुड, हैंड रेज कर दीजिए एक बार, या थम्स अप कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये मैं विचार करना चाहता हूँ। वैसे अभी मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के हैंड रेज आए हैं। एक खुशी का है, एक नुपुर का है, एक भगत का है। भगत आज ये पता नहीं भगत ने क्या किया। F41 तन्यम बवेजा साहब, वेरी गुड तन्यम, थैंक यू। तन्यम के अलावा एक और आ रहा है पर मुझे, वेरी गुड वेरी गुड। तन्यम, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस सर। तन्यम, मेरे बेटे को प्राइमरी की और फॉरिजन की का मतलब समझ आया? हाँ जी सर। थोड़ा सा मेरे को गाइड कर दे यार, प्राइमरी की जितना तुझे समझ आया। हाँ जी, प्राइमरी की हम टेबल के अंदर मेंशन करते हैं, फॉरेन की से हम लिंक करते हैं टेबल्स को। ठीक है जी, रेफरेंस के थ्रू। ठीक है सर। और अगर आपके प्राइमरी टेबल में या पेरेंट टेबल में वो डाटा अवेलेबल नहीं है और जो डाटा अवेलेबल नहीं है उसके रिलेटेड, जैसे मैंने टीआईडी लिया था, क्या आप वो सिमिलर टीआईडी चाइल्ड टेबल में एंटर करवा सकते हो? अगर पेरेंट टेबल में होगा तो करवा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो एरर नहीं आएगा। होगा तो नहीं करवा सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच तन्यम, गॉड ब्लेस यू। मेरे को आइडिया हो गया कि हाँ ठीक है, बच्चे को समझ आ गया। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी काइंडली कंसंट्रेट, काइंडली कंसंट्रेट। अब जरा अगली चीज देखना, प्राइमरी की और फॉरिजन की के रिलेटेड ही प्लीज देखिएगा। अब मैंने क्या किया, अब मैं दोनों टेबल दिखा रहा हूँ आपको, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं सेलेक्ट स्टार। यहाँ पे मैंने दोनों टेबल आपको चेक करवा देता हूँ। मैंने लिखा टीचर टीचर और एंटर हिट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज टू बी कंसीडर एज अ STUDENT। अब मैं दोनों टेबल आपको चेक करवा दिया, ये देख लीजिएगा प्लीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, देखिए, अब मेरे चाइल्ड टेबल के अंदर आई हैव लिंक्ड अप these 2 teacher IDs, that is 101 and 105. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, I just want to delete the data from a parent table. मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि उसने बोला there is a link is being established in between these 2 tables. Now I just want to delete a data from a parent table. अब मैंने क्या किया, प्लीज देखना जरा यहाँ पे ध्यान से। मैंने लिखा delete। बेटा ये ना SQL इतना इजी है ना कि whatever you are thinking of, कि जैसे आपने सोचा कि now I want to delete data of Kawaljeet from a table teacher 001. So similar kind of thing you are supposed to write delete from, कहाँ से, teacher 001, बिल्कुल ठीक है, डिलीट कर दीजिए। कहाँ से, टीचर 001 से। वेयर, जहां पे मैं आप क्या कर रहा हूं, मैं अरविंद सर की इंफॉर्मेशन को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लिखा वेयर TID इज इक्वल टू 101। मैंने यहाँ 101 लिख दिया और मैंने क्या किया, एंटर हिट किया। अब ये क्यों नहीं हुई डिलीट, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये कहता है कैन नॉट डिलीट, दोबारा इसने वही चीज बोली, कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट। मैं डिलीट भी नहीं कर सकता और अपडेट भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैविंग अ रेफरेंस इन दैट पर्टिकुलर टेबल व्हिच इज टू बी कॉल्ड एज द स्टूडेंट 001। ये इसके अंदर ये 101 यहाँ पे यूज किया गया है, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। तो सर कंवलजीत सर की जो आईडी है 102 वो तो नहीं यूज की गई, और जीवन सर की आईडी जो है वो भी यूज नहीं की गई, तो क्या उनको डिलीट कर सकते हैं? तो यार पूछना क्या, अभी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा टीचर डिलीट फ्रॉम टीचर 001, कहता सर बिल्कुल सही। वेयर, मैंने लिखा टीचर आईडी व्हिच इज टू बी कंसीडर एज 2 हियर 102, और मैंने जैसे ही यहाँ पे किया वो कहता क्वेरी इज सेटिस्फाइड। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर TEACHER 0001, और अब मैंने जैसे एंटर हिट किया इट सेज कि हम उनकी आईडीज या उनके डाटा को डिलीट कर सकते हैं। दोज डाटा इज नॉट लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर, बिकॉज अभी उसके सेम टाइम पे चाइल्ड टेबल के अंदर 102 टीचर किसी को असाइन नहीं किया गया था। नाउ व्हेन वी असाइंड, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और कर दिया, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू किसके अंदर, स्टूडेंट 001 वैल्यूज। अब वैल्यूज में मैंने क्या डालना था, सबसे पहले मेरे ख्याल से स्टूडेंट आईडी, एसनेम और TID, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 210, उसके बाद मैंने लिख दिया राहुल, उसके बाद मैंने क्या लिखा, उसके बाद मैंने असाइन कर दिया 105। अब इससे पहले नहीं 103 सॉरी, क्योंकि इससे पहले हमने जीवन सर को अलॉट नहीं किया किसी को। नाउ वी अलॉट जीवन सर एंड हिट दैट एंटर। ओके, नाउ वी कैन सिंपली टाइप हियर this is select star from this, and now we can type here the select star from
स्टूडेंट हियर। अब मैंने ये ध्यान से देखना, अब मैंने इन तीनों को ऊपर जो टेबल के अंदर है उनको मैंने लिंक्ड कर दिया नीचे स्टूडेंट्स के साथ। अब हम किसी को भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। डिलीट फ्रॉम कहां से करो, टीचर 001 वेयर जहां पे TID, जहां पे TID इज इक्वल टू कौन सा था 103, मैंने लिखा 103 और जैसे ही किया नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी वायलेटेड। अब कैसे डिलीट कर सकते हैं सर? अगर मुझे तो डिलीट करना है ना सर, आप ये क्यों बात कर रहे हैं? सो फॉर द सेम फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिलीट द डाटा फ्रॉम द चाइल्ड टेबल। ये 105 नाम का डाटा जो है, ये डाटा पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा चाइल्ड टेबल से, एंड देन वी कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर एंट्री of Mr. Vijay Sood, or we can delete this entry of Rahul from the child table, and then we can delete Mr. Vijay Sood from the teacher table. एक बार करके दिखा देता हूँ, चेक कर लेना, बाद में ये गुस्सा ना करना कि हमें तो पता ही नहीं लगा था, अपने आप ही कर दिया। मैंने लिखा delete DELET delete from STUDENT 001, कहता ठीक है। अब मैंने एंटर हिट किया, कहाँ पे, वेयर, जहाँ पे क्या हो, मैंने लिखा वहां पे TID लिखते देख लेते हैं। TID इज इक्वल टू, अगर नहीं करेगा तो SID के साथ आएंगे। TID इज इक्वल टू अरविंद करूं पहले 101 और मैंने एंटर हिट किया, वो कहता डिलीट हो गया डाटा। कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT 001, मैंने एंटर हिट किया, सॉरी मैंने वहां पे स्टार की जगह स्टार की जगह 8 आ गया, वो जल्दी से टाइप करने में ना। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू हिट दैट एंटर की। Arvind is deleted, Arvind is deleted. Now what we can do here, kindly consider, in spite of writing here as a student, now we can write it here as a teacher। मेरे टीचर वाले टेबल में where TID is equal to, मेरे ख्याल से अरविंद जी की ID 101 है, yes 101। Now what we can do, we just hit that enter and we can mention here that we are just going to display the data of teacher here, ठीक है, and now the data will be deleted, and in spite of that we can also mention the data which is to be considered as the student here and hit the enter. Now the data will be deleted। अच्छा मेरी बात, अब मैं एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। I am just going to ask question from each and every one of you, एक एक करके, और कोशिश करिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सब लोग आंसर देने की कृपालता करें। सबसे पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में जो मेरे पास आ रहा है उसमें शुरू करूंगा। खुशी, Yes. खुशी क्या समझ आया एक दो लाइंस में कि अभी हमने क्या किया? तो डिलीट किसी भी तरह हो सकता है। अगर वो किसी और टेबल के साथ लिंक्ड है तो पहले उस किस टेबल के साथ लिंक्ड है वहां से उसकी एग्जिस्टेंस खत्म करेंगे और फिर वो अपने टेबल से डिलीट होएगा। फिर चाइल्ड टेबल से डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब आपको खुशी जी ये क्लियर हुआ कि ये फॉरिजन की और प्राइमरी की है क्या, और हम क्यों बोल रहे थे कि देयर इज अ लिंक इन बिटवीन दीज टू टेबल्स? यस सर। ठीक है। संजना विर्दी जी, संजना जी, इफ एवरीथिंग इज फाइन। संजना क्या समझ आया, थोड़ा सा एक आधी लाइन में बता दे। सर वो जो पेरेंट की है और जो चाइल्ड आईडी इसमें लिंक कैसे है और हमें वो डिलीट कैसे करना है अगर वो दोनों टेबल्स लिंक हैं। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज बहुत लाउड आ रही थी, कोई बात नहीं, मैं सुन लिया मैंने। अकुल वशिष्ठ जी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अकुल वशिष्ठ। अकुल जी। भगत प्रीत। Yes, sir. भगत की समझ आया सी उत्तर? Sir, how to delete values from the table? Okay. And what do you understand by the concept of primary key as well as foreign key? सर ये दोनों इससे पता चलता है कि ये दोनों टेबल कैसे लिंक्ड है और इनको लिंक्ड कैसे करते हैं। यूज करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। जय कौर जी नमस्कार, क्या समझ आया आपको इस कॉन्सेप्ट से जो अभी हमने करवाया? सर कि हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं और प्राइमरी की और फॉरेन की एक आपस में कैसे लिंक कर सकती हैं दोनों कीज, बिल्कुल, और उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके,
Now, my dear students, I think so that the concept of primary key as well as origin key is clear to you, and consider this thing that this is a very, very, very important concept here. Now we can just begin with overview of SQL, that is SQL and a MySQL. Overview of SQL and MySQL is considered as both considered as the same thing, and here SQL stands for a structured query language. Mera beta ji, this says that SQL stands for a structured query language. मेरे बच्चों जरा कृपया करके ध्यान दीजिएगा. SQL, structured query language, is a standard language for assessing and manipulating databases. Assessing means उसमें से डाटा निकालना और मैनिपुलेट उसके अंदर डाटा डालना, उसके अंदर ऑल्टरेशन करनी, कुछ चेंज करना, डिलीट करना, ये सारे के सारे काम हम कर सकते हैं. We are supposed to do all these things. Okay. SQL commands are used to create, very good, मैंने सर देखा है कैसे create होता है, transform and retrieve, how we can transfer or we can retrieve, assess data, information from the relational database management system. मेरे बेटा जी, whenever we talk about a relational database management system, so we can talk about that relational word representing a word that is to be considered as a table. जब भी हम करेंगे हम बोलेंगे कि this is the database in which we have different tables and in those tables we are supposed to store the data. हम उन tables के अंदर हम जो डाटा है वो store कर सकते हैं. Third point, it says used to create an interface between a user and database. मेरे बेटा जी, इसी चैप्टर के अंदर SQL के पार्ट के अंदर we are supposed to done one topic where we are, in spite of opening SQL, from Python itself we can create a database. From Python itself we can create a tables and enter the data and perform each and everything. With the help of that we create an interface, but practically we do it will take 4 or 5 days more, I think so. So next point, it says by using SQL commands one can search for any data in the database, बिल्कुल ठीक है, and perform other function like creating, adding, modifying, removing, dropping, etc. सर सच बताऊं, इसमें से creating तो मुझे समझ आ गया, how to create, adding का भी आ गया कि वो insert वाला यूज करते हैं. सर एक तो modify मुझे नहीं पता इसके बारे में, ना ही मुझे remove करने के बारे में पता है और ना ही ये dropping के बारे में मुझे पता है. तो आपकी ये responsibility है that you are going to discuss these things with me, that how we can do that. Okay, no problem. Before that, we can just elaborate the advantages of MySQL. Ease of use. I'm not going to just dip into a very deep side, but we are just going to discuss very brief. Ease of use says that this software is, I think so, you also watch that that this software is very much easy to use. Nothing complication will be there. And no need to remember any kind of syntaxes, as we have mentioned in Python that indentation is required for defining a function, def is required for performing some other things. So we have to remember that particular thing. So there is no need to remember those things. We can easily, as usual, we are talking, we are supposed to write the queries to retrieve data or perform different actions. No coding required. जैसे मैंने पहले पॉइंट में बता ही दिया, in that programming, in that this is not a programming language, this is a query language, query, where we have to type the queries and the system act accordingly. So no programming is required, no coding is required. Cost, basically, if you are very much aware about open source software, open source means the software which is available free of cost. No payment is required for that. So in that context, Linux is an operating system which is available free of cost. Very good. After that, even you know that we all have downloaded Python without any charges, and this is also to be considered as a free of cost or open source. So one phrase is going to be used, that is to be called as a LAMP. मेरे बच्चों याद रखना, मैंने बोला LAMP, LAMP. This is a bundle of free and open source software. फ्री का मतलब जिसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी, एंड ओपन सोर्स मींस जो फ्री भी हैं और जिनके सोर्स कोड कैसे वो प्रोग्राम बना हुआ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्जेस. सर बट एक तो बात बता दो, इसकी लैंप का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैंप?
सर L stands for a Linux, that is the operating system. कहता बिल्कुल ठीक है। अब याद रखना मैं पूछूंगा अभी, उसके बाद आफ्टर दैट सर A आ गया। A is Apache, that is a HTTP server. HTTP का मतलब क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। थर्ड थिंग सर M आ गया। M सर M से आएगा MySQL which is a relational database management system। एंड सर P से क्या आएगा? फिर P से क्या आ जाएगा? P से तीन चीजें आ सकती हैं। एक आ सकता है PHP, दिस इज अ लैंग्वेज। एक और आ सकता है Perl, दिस इज अगेन अ लैंग्वेज। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज व्हिच वी आर आल्सो लर्निंग, दैट P इज अ पाइथन। मेरे बच्चों ने, जितने लोगों ने मेरी बात सुनी है, अभी मैंने लैम्प के बारे में बात की है, कौन इसकी फुल फॉर्म बता सकता है? हैंड रेज करे, नहीं तो फिर मैं नाम तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा यार। लैम्प, व्हाट इज द, अरे वाह, नुपुर का, खुशी का, भगत का, अरे वाह, भगत के अलावा एक और भी है, तन्यम। अरे वाह यार क्या बात है, इसका मतलब तन्यम के बाद जशनप्रीत भी। अरे वाह क्या बात है। जयकौर, अकुल वशिष्ठ और संजना वृद्धि ने हैंड रेज नहीं किए, उन्होंने बोला कि चलो छोड़। अच्छा नहीं, सॉरी, जय ने भी किया हुआ है, संजना का और अकुल का नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैं चलता हूँ अपने साथी के पास, तन्यम एक बार आना, बोलना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैम्प? लिनक्स, अपाचे, MySQL, पाइथन। अरे वाह। और पाइथन में अगर P में कुछ और भी इंक्लूड करना हो तो PHP या पर्ल भी कंसीडर हो सकती है, नो इश्यूज विद दैट। थैंक यू वेरी मच तन्यम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, next thing, my dear respected students, it says, kindly consider, it says a portability. Sir, portability is very important these days, that basically this is a MySQL which is we are supposed to use this MySQL on different platforms, whether it is PHP, it is compatibility, no compatibility issues will be there. Even we can compatible it with Perl as well, we can compatible it with the Python as well. We can also compatible this particular MySQL database with n number of languages. So they are very much portable with other different languages. And data types means they can provide us a variety of data types. Even we have right now we have using only integer and character, but n number of data types will be there, which recently, very recently we are supposed to explore. We are supposed to explore that how we can do these things. And last will be security का मतलब आपको पता ही है, that it provides us the password. They are talking about password, that in spite of password we are not supposed to do whatever we want to do. Okay, अब देखना जरा, this is classification of SQL statements. अब SQL को क्लासिफाई कैसे करेंगे? इन डिफरेंट स्टेटमेंट। ध्यान से देखना जरा, SQL स्टेटमेंट सबसे पहले आ गया DDL। अभी मैं यही पूछूंगा आज आपसे, DDL, फर्स्ट इज DDL, दैट इज अ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा आ गया DML, दैट इज अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा आ गया DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और फोर्थ है TCL, that is a transaction control language. But I want to mention here, my dear respected students, that basically in that particular very important to remember is these two is very important to remember, because we are working on that. That is DDL, that is a data definition language, and DML, that is to be called as a data manipulation language. These two are as per my context or as per your syllabus's context, so this is not as very much important for +2 class. So what we can do, but I just going to give you one clue here. Whenever we want to talk about a data definition language, kindly remember one word that is to be called as a card, CARD, card. अब मैंने देख लो तुम्हें बता दिया है कि whenever we talk about a DDL, we talk about that this is a card, and when we talk about DML language, then it is to be called as a SIDU, SIDU. मेरे बच्चों को मेरी बात यहाँ तक मुझे लगता है समझ आ गई हुई है। एक जने से किसी से पूछ लेता हूँ कि DDL को कैसे याद रखना है। जशनप्रीत, DDL को कैसे याद रखोगे? कार्ड की स्पेलिंग बोल देना एक बार, CARD। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और अकुल से बात करूंगा, वो अभी वैसे तो मेरे से बात कर नहीं रहा है, पर फिर भी चलो नो प्रॉब्लम।
अकुल, अगर DML याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? हाउ वी कैन मेमोराइज द DML? वेरी गुड, thank you very much Akul. We talk about this thing with Bhagat Preet. Bhagat, कैसे याद रखूंगा यार DML को? तो सिडू, अरे वाह, स्पेलिंग बोल दे एक बार सिडू के। SIDU। अरे वाह, अब ये बात आ गई, लिख लेना जरा नोटबुक पे कि सर ने ये हिंट दिया था कि इससे याद रखना है। अब जरा देखना जरा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, इट सेज DDL is a part of a SQL permit database table to be created or deleted. ये स्ट्रक्चर के साथ, डेफिनेशन के साथ, how we can declare, उसके साथ रिलेटेड है। and specifies link between table as imposed constraint on table. पाबंदियां लगाने के लिए, constraint लगाने के लिए applicable है। and we can create, manipulate, alter and delete data. Examples, कहता ये सारी चीजें हैं जो आप इनसे कर सकते हैं। प्लीज ये देखिएगा, अब ध्यान से देखना जरा। अब मैं एक एक करके कार्ड को जस्टिफाई कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू जस्टिफाई अ कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा बेटा ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आपने बोला सर सबसे पहले लिखना शो डाटा बेसिस। मैंने यहाँ पे लिख दिया शो डाटा बेसिस, डाटा बेसिस आ गया। अब मैंने क्या किया, CREATE क्रिएट डाटाबेस K1 एक बार करके देखूं। और मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, अब दोबारा मैंने लिखा यहाँ पे दैट इज अ शो डाटाबेसेस। इट सेज नाउ द database that is named as a K1 is being created with the help of C representing a create, second thing, now what we can do, we use K1। अब मैं K1 के अंदर एंटर कर गया। अब मैं लिखा create table AS and सिर्फ एक ही कॉलम लूंगा, सिर्फ तुम्हें क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। we can mention roll number is integer, नहीं यार एक नहीं, फिर वो अकेला रह जाएगा ना, वो डरेगा फिर एक कि कैसे करूँ मैं। अब मैंने क्या किया, एंटर हिट किया, ओके नो प्रॉब्लम। बट वी हैव डन टेबल AS। क्या कहता है, यू हैव एरर इन सिस्टम, क्रिएट टेबल AS, ओके। आफ्टर दैट दिस इज रोल नंबर इज इंटीजर, एस नेम इज टू बी कंसीडर एज दिस वन, दे आर नॉट ओपन, ओके। हम अब दोबारा से कर लेते हैं। मैं लिखा क्रिएट टेबल, मैंने लिख दिया FR, कहता क्रिएट टेबल FR, कहता हाँ जी। मैंने लिखा R नंबर, मैंने लिखा int, मैंने लिखा int int, मैंने एंटर हिट किया। और जैसे ही एंटर हिट किया, दिस इज दैट यस वी हैव क्रिएटेड अ टेबल इन बोथ वेज, क्रिएट टेबल एज वेल एज क्रिएटिंग अ डाटाबेस। अब दूसरी चीज आ गई A ऑल्टर। सर ऑल्टर कैसे करोगे, अब देखना जरा ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा एक बार हम डाटाबेस यूज करते हैं, यूज डाटा, और मैंने वहां पे टेबल अभी क्रिएट किया था, मैंने टीचर किया था ना, ये देखो डिस्क्राइब, और मैंने लिख दिया TEACHER 001 और एंटर हिट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मेरे बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अब मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, उसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ। वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज समथिंग विद इन दैट पर्टिकुलर, सिर्फ ए ही होगा मुझे लगता है आज। मैंने लिखा ऑल्टर कर दो। किसको ऑल्टर करो, टेबल को। टेबल का नाम बताओ, टीचर 001। कहता सर बिल्कुल ठीक है। सर क्या करो, एक फील्ड ऐड कर देते हैं सर इसके अंदर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। कहता बिल्कुल कर देते हैं। मैंने लिखा ऐड, और मैंने क्या लिखा, M नंबर, मैंने लिख दिया M नंबर, और मैंने लिख दिया INT end, मैंने इंटीजर लिख के एंटर हिट मारा। और मैंने जैसे इसको चेक किया, अब जरा ध्यान से देखना, मैं लिखा डिस्क्राइब, और मैंने लिखा TEACHER 001, मैंने एंटर हिट किया। ये देखिए यहाँ पे now the M number is going to be displayed on the screen, and even you can simply type select star from teacher 001